Hello dear students, welcome back. This is Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry. On the behalf of Department of Chemistry, I welcome you all in this online lectures from your semester 4 organic synthesis and your first chapter, first unit, that is organometallic compounds, their applications. So already we learned some organometallic compounds like Grignard reagent, like organolithium, organo, zinc so far. So today we will be proceed from the same, that is from organo zinc. In case of organo zinc, we already learned the synthesis and what reformats reaction is one more important applications. Now one more remaining, that is Simon-Smith reaction we will be covered, and today then we will start the organo copper. Okay, so stay connected. So here are the introductory part about the organo zinc. You know that it is a less polar reagent than compared to carbon lithium and carbon magnesium. So it is a more reactive, it is a more selective type of a reagent for the functional group transformation. That is why there are two more important reactions like Reformatsky reaction and Simon-Smith reaction. So this reagent cannot open the epoxide. Now what is the Reformatsky reaction? Now you can see here. So alpha haloesters reacts first with the zinc. It will be form the zinc enolate ion, and it reacts with the carbonyl compound like aldehyde or ketone. There is a formation of a beta hydroxy ester, and that reaction is an example of a Reformatsky condensation reaction. So then we will see the first mechanism. Already we learned like this one. So first zinc is combined with or zinc is simply what insert in between that carbon and the halogen. But first of all, zinc is just behave like this. It will be first combined to here, and there is a formation of a zinc enolate ion, and then zinc enolate ion is combined with your aldehyde or as well as ketone. So you will get the product, and product of this reaction is beta hydroxy ester. So there are what two steps are there particularly. One is what the generation of a zinc enolate ion using this alpha halo ester, and the second is the attack of enolate ion to the carbonyl carbon, and finally you will get this product. Okay. So in some cases what the enantioselective selective reactions also be there, that is organo zinc reagent act as a enantioselective selective. So you can look at this one. This is what your compound and reacts with your carbonyl system in the presence of a zinc, you will get this. तो शायद ये आपको भी एग्जाम्पल्स आपने इसको सॉल्व किया होगा. मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है. ये सेम एग्जाम्पल हमने मैकेनिज्म भी हमने देखा था, ये वाला. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अल्फ़ा हेलो ईस्टर है आपका, सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, सॉरी यहाँ पे आप एक मिसिंग पार्ट रह गया था, ये वाला. चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म. तो पहले आपको क्या करना है, जिंक लेना है, ठीक है. और जिंक लेने के बाद ये आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा. सो आपके पास क्या बनेगा फिर, सो दिस इज़ ROC डबल बॉन्ड O, and here will be a CH2 negative ion and like this one. Suppose तो ये वाला पहले आप इसको इनोलेट बनाओगे, तो इनोलेट कैसे रहेगा आपका, द इनोलेट आयन विल बी RO नेगेटिव ZnBr, और ये हो गया आपका CH2. अब इसकी रिएक्शन आपको करनी है साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में. तो साइक्लोहेक्सेनोन कौन है आपका, ये वाला. तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से फ्लो होते हैं, सो दैट विल बी रिएक्ट एट हियर नाउ, बराबर है. बॉन्ड विल बी ओपन टू अट ऑक्सीजन. क्या बनेगा आपका, देखो ये है आपका O नेगेटिव, यहाँ पे हमने कौन सा कार्बन ज्वाइन किया, दिस इज CH2, ठीक है, CH2 वाला. उसके बाद क्या ज्वाइन हुआ है, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस विल बी R नाउ. बस सिंपली आपको प्रोटोनेशन करना है. जस्ट डू द प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन जैसे आप करोगे उसको, सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी व्हाट कन्वर्ट्स टू बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर. देखो ये OH हो गया आपका, यहाँ पे आपका CH2 आएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये R आ गया. समझ में कैसे लिखा है इसका मैकेनिज्म. तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम बात करते हैं, तो ये है अल्फ़ा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन. इसको बोलते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन. तो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर, यहाँ पे ये वाला जो है इसका प्रोडक्ट था, यानी कि दिस इज़ OH, दिस इज CH2COOR. फाइन, शायद आपने ये किया होगा. सो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको भी ज़्यादा, ठीक है. वैसे भी आपके ऊपर बहुत लोड है अभी.
देखो अगर आपको ये समझ में आता है तो आप फिर से ट्राई करो, नाइदर नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, वैसे भी आपकी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अनदर एग्जाम्पल ले सकते सेम, ये भी आपका ओयर, अब गलती तो मेरी है तो एक्चुअली अब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना ये। चलिए, तो ये वाला भी आप एक कंपाउंड देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंक के जगह मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। तो देखो पहली रिएक्शन जो है ये जाती है आपकी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए रिफॉर्मेट्स रिएक्शन दैट विल प्रोड्यूस इज व्हाट बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। दोनों रिएक्शंस के रिएक्टेंट सेम है, सिंपली हमने कंडीशन बदल दी। ये बेसिक मीडियम रिएक्शन है, ये आपके ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन है। यहाँ पे आपका ऑर्गेनोमेटालिक ऑर्गेनो जिंक बन रहा है, आपका बना है ऑर्गेनो जिंक। सो इस रिएक्शन में पहले आपको बेस है तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और फिर ये खुद साहेब आपका रिएक्ट होगा इधर। अब जब ये खुद से रिएक्ट हो गया तो देखो आपका क्या बनेगा इधर, दिस विल बी ओ नेगेटिव, दिस विल बी व्हाट इज CH2, ओके, देन व्हाट, दिस विल बी व्हाट C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कौन है, इसके साथ Br है, और ये रहा आपका, आगे समझ में, मतलब ये वाला कार्बन आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज आपका सिंपल सी बात है, इसमें आपका Br है तो ये भाग जाएगा इधर। तो जैसे Br चला गया तो आपको क्या मिला, देखो वेरी इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ये देखो हो गया, और ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा एपॉक्सी ईस्टर, एपॉक्सी ईस्टर, ओके, एंड आल्सो बी कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक ईस्टर। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोसिडिक ईस्टर, ठीक है। एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए डार्जन कंडेंसेशन। सोच रहा था अब दोनों को सेम रिएक्टेंट है तो दोनों एक साथ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली आपको भी समझ में आएगा कि हमने दो रिएक्शन एक ही इसमें पढ़े हैं, ठीक है। दिस इज रिफॉर्मेंट्स की रिएक्शन। चलिए देखो कितना आसान है ये रिफॉर्मेंट्स की रिएक्शन, एंड दिस इज व्हाट डार्जन। सो ये CC बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा, बेस कैटालाइज रिएक्शन में जाता है। सेमेस्टर नंबर 3 में ऑलरेडी आपने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज ए साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। अब साइक्लोप्रोपेन हमने इपॉक्सीडेशन पढ़ा है, 3 मेंबर रिंग वहाँ पे भी बनती है, यहाँ पर भी आपकी बनेगी, लेकिन साइक्लोप्रोपेन बनेगा। चलिए देखते हैं कि ये रिएक्शन में क्या खास बात। ये रिएक्शन के जो फाउंडर है वो है साइमन एंड स्मिथ, और 1958 में इस रिएक्शन को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर को, दोनों को कपल करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेन रिएक्टेंट है इसका ओलेफिन प्लस आइडोमीथेन। कौन है आपकी रिएक्टेंट, ये जो सर्कल की है वो इसकी रिएक्टेंट है। यानी कि आपको देखो बहुत सिंपल है, आपका ये लेना है आपको, और CH2I2 लेना है, और ZnCu लगा देना है, बस हो गया। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा ये, हो गया ना। अब क्या है, सिंपल सी बात है, ZnI2 हो गया बाहर आपका। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन रहेगी, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ अन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वी विल सी दैट। मेन थिंग जो है इसमें इस रिएक्शन की वो कुछ और है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो CH2I2 और ZnCu जब मिलते हैं, कौन कौन, CH2I2 का स्ट्रक्चर कैसे है, देखो दिस इज़ व्हाट आइडोमीथेन। आइडोमीथेन कैसा होता है, ये वाला, और हमने साथ में क्या किया है, जिंक डाल दिया, तो जिंक आपका इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ICH2ZnI, ICH2 एंड ZnI। कैसे बना है इसका, इफ़ यू जस्ट इंसर्ट दैट जिंक व्हाट विल हैपन, सो कार्बन आ गया इधर, इधर जिंक आ गया, साथ में आयोडीन आ गया, और ये आ गया आपका आयोडीन, ये आ गया आपका H, ये आ गया आपका H। अब मुझे बताइए क्या मैं इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल सकता हूँ, यस मैं तो बोलूँगा, आपको बोलना है तो बोल सकते हो, आप भी बोलो, क्योंकि यहाँ पे मेटल कार्बन डेवलप्ड हुआ है, बराबर है, इसलिए इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनो जिंक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो कंपाउंड है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ये कम्प्लीटली CH2 अपने कम्प्लीटली आयोडीन को भी बाहर निकाल लेता है, और जिसकी वजह से आपका जो मेन स्केलेटन है वो बन जाता है सिंगलेट कार्बिन। That means the reactant, or that means reactive species which is developed in this reaction is a carbene। तो जैसे कि मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लेके देखिए, इसके दोनों हाइड्रोजन देखो सेम साइड में, मतलब ये कंपाउंड आपका
सिस अल्कीन है, तो सिस अल्कीन है तो क्या हो जाएगा, CH2I2 कंबाइन हो जाएगा, तो आपको देखो सिस प्रोडक्ट मिला है। सिस प्रोडक्ट समझ में आता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए स्टीरियो स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन इधर ये आता है कि जब अगर हम अल्कीन यूज़ कर रहे हैं, बराबर है, तो किस टाइप का अल्कीन होना चाहिए, क्योंकि कार्बिन आपका रिएक्टेंट है ना, इसके अंदर कार्बिन आपका रिएजेंट है, सॉरी कार्बिन इज रिएजेंट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका जो ओलेफिन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। सो ये रहेगी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड किया मैंने, क्योंकि कार्बिन क्या होता है, कार्बिन इज ए 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इट इज़ ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये खुद न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो मुझे आपका रिएक्टेंट कैसा चाहिए, फिर मेरे पास रिएक्टेंट बहुत रीच चाहिए। तो ये क्या करता है, साइमन स्मिथ रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन रीच अल्किन का ही क्या होता है, साइक्लोप्रोपेशन करता है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि कॉन्जुगेटेड अल्किन मेरे पास है और मुझे साइक्लोप्रोपेन करके दिखाओ इसका, क्या मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ साइमन स्मिथ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो अल्कीन है वो कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेटेड अल्कीन कैसे रहते हैं, दे आर लेस्ट न्यूक्लियोफिलिक। आइसोलेटेड का आप आसानी से कर सकते। देखो यहाँ पे देखो CO2 Me कितना दूर है, इसके बहुत दूर है, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपका ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस है, इसीलिए मेरे पास क्या रहेगा, पहले डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो मैं पहले उसका करूँगा, उसके बाद अगर नहीं है डोनेटिंग ग्रुप तो मैं इसका करूँगा। विड्रॉइंग ग्रुप अगर ओलेफिन को अटैच होगा तो मैं बिल्कुल भी मैं मना कर दूंगा सीधा कि मेरे से नहीं होगा ये काम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये तो वेट, हाँ तो जैसे कि मैंने आपको इसका स्टेटमेंट बताया, एक रिएक्शन बताई कि कैसे हमारा बनता है ये, और ये वाला देखो। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, मैंने एक बताया आपको क्या कि इसमें कार्बिन बनता है, और कार्बिन होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है सिंगलेट कार्बिन यानी कि ये वाला कार्बिन, और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन की जो एडिशन है वो हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। सो रिमेंबर दिस वन। सो साइक्लोप्रोपेनेशन जो रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट अल्कीन और कार्बिन के साथ, ये हमेशा सिन एडिशन होती है। सिन मतलब सेम साइड से। ठीक है, और इसमें जो बनने वाला जो हमारा स्पीसीज है वो है कार्बिन। ठीक है, ये कौन है, दिस इज व्हाट कार्बिन नाउ। सो बेसिकली व्हाट हमको ये पता करना है इसके अंदर कि आपका कार्बिन जो है वो आपके अल्कीन पे इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जिस वजह से व्हाट अगर हम यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कार्बिन है ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड से अटैक होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, और इसका मैकेनिज्म हमने देखना है। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है आपका। देखो बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। तो ये वाला Zn तो आपका इंसर्ट हो गया CH2I2 के अंदर, और ये देखो यहाँ पे CH2 आपका सेम साइड से अटैक होते हुए दिखता है आपको। एक 3 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये Zn जो है आपका ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉपर। ठीक है, चलिए तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर। ओके, दिस इज अबाउट द योर रिएक्शन दैट इज ऑर्गेनो जिंक। अब इसकी मेन चीज़ें क्या होती है वो अपन देखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइमन स्मिथ रिएक्शन। सबसे पहले तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। सिस अल्किन अगर है तो सिस आपको साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ मैंने और ये डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मिथाइल ग्रुप जो है साइक्लोप्रोपेनेशन आपका कहाँ पे होगा, वो होगा बैक साइड से। इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट क्या है आपका, ये मेजर रहेगा। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये मिथिल ग्रुप है, नहीं तो आप बोलोगे ये क्या निकाला आपने। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका कि अगर आपके पास कोई अदर फंक्शन ग्रुप है तो टॉलरेट करता है। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल हमने देखा, CO2 Me लगा हुआ था, उसके साथ कुछ किया क्या उसने, नहीं किया, तो इसका मतलब अदर फंक्शन ग्रुप को क्या करता है, टॉलरेट करता है। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर आपके पास सपोज चिलेटिंग ग्रुप अगर रहेंगे, से एग्जांपल OH है या OMe है या OR बोलेंगे इसको या NR2 बोलेंगे, तो ये ग्रुप अगर रहेंगे तो ये सेम साइड से आपका क्या करेगा, साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा, क्योंकि वहाँ पे चिलेशन होता है। ठीक है,
तो ये रिएक्शन आपकी कीमो सेलेक्टिव भी आती है, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड रहेगा, इसको अपन रिजियो बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आपका जाता है कॉन्जुगेशन में, दिस इज इन कॉन्जुगेशन। बट ये क्या है आपका, दिस इज आइसोलेटेड। तो हमने अभी केमिस्ट्री पढ़ी है कि आपका कार्बिन खुद क्या होता है, डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट किसको करेगा, रिच को। रिच कौन होता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। सो होगी बात आपकी। सो ZnCu के साथ कंबाइन करोगे आपका CH2 बनेगा, और ये देखो साइक्लोप्रोपेन का बन गया। CSR का क्वेश्चन है ये। मतलब अगर आपने अगर थोड़ा सा दिमाग में डाल दिया कि नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे आगे भी एग्ज़ाम में काम आएगा, तो आप IPR में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब बार बार आप बोलते होंगे कि ये बार बार क्या CSR का लगाते हैं, MPSC UPSC तो बोलते नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कि CSR में मेजर सब्जेक्ट जो होता है ना आपका, ये सेट एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम है, गेट, ये मेजर आपका होता है केमिस्ट्री। अगर UPSC MPSC की बात करें तो वहाँ पे आपका 10% केमिस्ट्री आपका होता है। तो हम हमेशा फोकस किस पे करेंगे फिर, जिसमें हमारा ज़्यादा सिलेबस है, जो आउटपुट हमको ज़्यादा दे रहा है। तो एक बात आप यहाँ पे ये नोट कर लो इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी एक मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि अगर चिलेटिंग ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट होगा तो साइक्लोप्रोपेनेशन कहाँ पे होगा, सेम साइड से होगा। रिमेंबर दिस, क्योंकि क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तो न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे उससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कोई और है, कौन है, O है। तो O क्या करता है, पहले इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है, O के साथ आपका ये पूरा सिस्टम बन गया ये वाला। अब क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनी है वो किस साइड में बनी है, रिस्पेक्ट टू OH, और OH कहाँ पे, अबोव है, तो ये सब अबोव में बन गया। अगर OH बिलो रहता तो ये बिलो में बनती। अब उसी तरह से ये CH2 को डिलीवर कर देगा जहाँ से वो लगाता, तो इसलिए ये ऊपर से डिलीवर करता है किसको, किसको, डबल बॉन्ड को। तो इस वजह से आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं चिलेशन कंट्रोल रिएक्शन, बराबर है। वैसे रिएक्शन ये क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव है। यहाँ पे देखो अगर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके अपोजिट में करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है फिर भी उसी सेम साइड से कर रहा है, इट डिपेंड्स, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज ए चिलेशन। दिस इज़ अबाउट द ऑर्गेनो जिंक, ये आपको बताना था इसलिए ये रह गया था। आज फिर हम नया टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनो कॉपर, और उसका जनरल फार्मूला है R2CuLi, कॉमनली कॉल्ड एज LDC, लिथियम डाइअल्किल क्यूपरेट। व्हाट इज़ दैट, lithium dialkyl cuprate, this is Li for lithium dialkyl and cuprate, ओके। आप R कोई भी यूज़ कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज, विनाइल, अलाइल, ओके, बेंजील, देन अरील, फिनील, व्हाटएवर आपको लगा वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, और इस रिएजेंट को रिपोर्ट किया था सबसे पहले गिलमन ने, इसलिए वजह से इसको बोला जाता है गिलमन रिएजेंट, ठीक है। चलिए, फेमस रिएजेंट है आपका कॉन्जुगेट एडिशन के लिए। अब अगर हम बात करेंगे कि कंपैरेटिवली पोलैरिटी की, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, डिफरेंस निकालो ना फटाफट। देखो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है और साइड बाय साइड आपके कार्बन की कितनी होती है, आपको ये समझ में आएगा कि कॉपर और कार्बन का बॉन्ड सबसे लेस पोलराइज होता है, मतलब सबसे, मतलब अभी तक जितने रीजन हमने पढ़े, ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड इज लेस पोलराइज दैन Cli एंड CMG। हम बार बार हम Cli को और CMG को क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि वो ऐसे है कि जिनकी सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होती है। तो इसीलिए ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रिएजेंट है, जो दो कार्बन कार्बन को जुड़ाने का काम करता है। सो इट इज़ अ कपलिंग रिएजेंट, ओके। और कार्बन हमेशा पता है आपको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बराबर है, किसके कंपेयर में, लिथियम और मैग्नीशियम के कंपेयर में। तो ये Cu और कार्बन का बॉन्ड लेस पोलर रहेगा, ठीक है। और ये कपलिंग रिएक्शन यानी कि CC बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएजेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि जितना लेस रिएक्टिव रिएजेंट रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सेलेक्टिविटी होती है, ओके। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट जो है आपका, ये किसी भी अल्काइल ग्रुप को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, जैसे अल्कील वाला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, से एग्जांपल RX, अल्किनाइल वाला है वो भी ले सकते हैं, अरील वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग अल्किलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएजेंट आपका ज़्यादा सेलेक्टिव है, इट इज़ अ मोर सेलेक्टिव रिएजेंट पर्टिकुलरली फॉर एसिड हालाइड। अगर आपके पास अदर है कोई फंक्शनलिटी, सपोज एग्जांपल एसिड हालाइड और कीटोन प्रेजेंट है, तो पहले ये ऑर्गेनो कॉपर एसिड हालाइड के साथ रिएक्ट करेगा, देन अदर, इसको बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। कीमो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है आपकी रिएक्टेंट में और आपका रिएजेंट प्रेफरेंशियली किसी एक को रिएक्ट कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड कीमो सेलेक्टिव।
अब अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले आएगा ये एसिड क्लोराइड, देन आएगा अल्डिहाइड, टॉसिल। और टॉसिल क्या मतलब क्या होता है, दिस इज ROTS, RI, ठीक है। देन इपॉक्साइड, ब्रोमाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स एंड नाइट्रेट्स। ये जो है ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। तो आपको ये भी लर्न करनी है इसमें, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन ये है कि अल्फ़ा बीटा अगर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल अगर है आपके पास, तो ऑर्गेनो कॉपर जो है ये 1,4 करता है स्पेसिफिकली देन व्हाट द 1,2। जैसे ग्रीनार्ड का कैसा काम, ग्रीनार्ड कैसे बदल जाता है, देखो ग्रीनार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, ये अगर आपके पास है तो ग्रीनार्ड आपका हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। अगर कॉपर रहेगा तो फिर यहाँ पे नाइदर नहीं, बट आपके पास कॉपर रहेगा मतलब दो रीजेंट होते हैं ग्रीनार्ड के, देखो सबसे पहला RMGX एंड सेकंड रिएजेंट RMGX इन कॉम्बिनेशन विद कॉपर साल्ट। तो ये रिएजेंट आपका हमेशा 1,2 दिखाएगा, ये रिएजेंट आपका 1,4 दिखाएगा। बट ये जो आपका हम पढ़ रहे हैं ना R2C वाला, ये तो आपका हमेशा ही कॉन्जुगेट एडिशन दिखाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम। इंटरेस्टिंग रिएजेंट आपका, तो ये दो अलग अलग टाइप के रिएजेंट होते हैं। एक को बोला जाता है होमोक्यूप्रेट। होमोक्यूप्रेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास दोनों R अगर सेम है, दैट इज कॉल्ड एज ए होमोक्यूप्रेट, ओके। चलिए सो वी विल सी द दिस वन। होमोक्यूप्रेट का एग्जांपल है यहाँ पे, आप अलग अलग मेथड से बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड द प्रिपरेटिव मेथड्स ऑफ होमोक्यूप्रेट। एंड हेट्रोक्यूप्रेट का मतलब होता है कि अगर आपका R डिफरेंट रहेगा अलग अलग टाइप्स में, एक अल्किल ग्रुप है और एक कोई और है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हेट्रोक्यूप्रेट्स। ना अलग अलग रिएजेंट है, बट जनरली हम जो है अप्लीकेबल एक ही रिएजेंट यूज़ करते हैं R2CuLi, यानी कि होमोक्यूप्रेट में जाता है, ठीक है। चलिए दिस इज द प्रिपरेटिव मेथड्स ऑफ व्हाट, होमो एंड हेट्रोक्यूप्रेट रिएजेंट। नाउ वी विल सी द व्हाट कॉन्जुगेट एडिशन। व्हाट इज दैट कॉन्जुगेट एडिशन? सो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप निकाला, ये वाला, तो क्या होता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप जो मैंने निकाला, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कौन से वाले? एक है आपका कार्बोनिल कार्बन, आया समझ में? देखो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर हम इसको पियर्सन कंसेप्ट में डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी साइज छोटी होती है, इट इज़ अ स्मॉलर कैटायन एंड इट इज़ अ लार्जर वन, लार्ज साइज। तो अब हमको ये पता है कि इंट्रैक्शन अगर किसी का स्ट्रांग कब होगा, ठीक है। तो इंट्रैक्शन अगर आप स्ट्रांग चाहते हो तो किसका होगा, स्मॉल साइज इलेक्ट्रोफाइल है ना ये आपका, और ये क्या है, लार्ज साइज इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्मॉल साइज इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर द स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा प्रिफर्ड, ये वाला। और लार्ज साइज इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कौन प्रिफर करेंगे, लार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो कॉपर वाला जो रिएजेंट आपका ये लार्ज यानी कि ये सॉफ्ट कैरेक्टर में जाता है। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड मतलब छोटा, हार्ड मतलब छोटा, और सॉफ्ट मतलब क्या हो गया, लार्जर। तो देखो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, ये सेकंड पोजीशन। अगर आप इसको नंबर करते तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन क्या होती है, स्मॉल इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो वहाँ पे क्या चाहिए तुमको, फिर छोटा ही न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ग्रीनार्ड रीजन जो है छोटे एग्जाम्पल में आता है। बट अगर ऑर्गेनो कॉपर की हम बात करेंगे तो वो आपका किस में जाता है, कॉन्जुगेट। तो इसलिए देखो कॉन्जुगेट एडिशन कैसे होती है, तो पहले आपका R2Cu जाएगा, फिर उसको हम प्रोटोनेशन करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। एक्चुअली ये आपको प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसका एक इनैंशियो सेलेक्टिव भी एग्जाम्पल है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो कि अगर आप ये बदल देते हो, ठीक है, आप R अगर बदल देते हो तो आप इनैंशियो सेलेक्टिविटी जो है इसकी, सॉरी दिस इज डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, वो आपको मिलती है कितने, 97%। यानी कि आप इनैंशियो सेलेक्टिव रिएजेंट भी इसमें देख सकते हो, ओके। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ये वाले। ऑर्गेनो कॉपर कॉम्प्लेक्सेस होता है RCU। लो ऑर्डर क्यूप्रेट यानी कि सिंपल रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है तुम्हारा R2CU वाला, ब्रैकेट क्लोज कर देना उधर। और लो ऑर्डर वाला जो होता है वो होता है RCuCnLi। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। एक रहेगा आपका हाई ऑर्डर वाला, यस हायर ऑर्डर वाला क्यूप्रेट होता है ये वाला। तो डोंट बी कन्फ्यूज, अगर R2CU अगर छोड़ के मैंने अगर कभी ये दे दिया तो छोड़ के भाग नहीं जाना है आपको, ठीक है, वो वहीं पे रुकना है, आपको देखना है, थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या यूज़ किया मैंने, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर वहाँ पे लगे हुए रहते तो आपका हायर ऑर्डर में जाता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाइदर R2CU तो आपका है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। चलिए
अब इसमें देखना है हमको कि कैसे इपॉक्साइड को ओपन करता है। हमेशा देखो आपके पास जो इपॉक्साइड की ओपनिंग है वो इस तरह से होती है। अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहेगा और कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट रहेगा आपका R नेगेटिव और M पॉजिटिव सपोज, हाँ, तो ये क्या करता है, SN2 प्रीफर करता है। SN2 मतलब क्या, स्टेरिकली फ्रॉम लेस क्राउडेड साइड। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस विल बी द R एंड दिस विल बी द O नेगेटिव, यानी कि आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। प्रेफरेंशियली आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, ओके, प्राइमरी नहीं मिलेगा आपको, बराबर है, रिमेंबर दिस। चलिए, तो अरे यार ये तो रिएक्शन उधर ही चलेगी जहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। तो दिखता है कि आपको ये देखो कैसे है यहाँ पे, अगर ये इपॉक्साइड आपको दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको कौन से पोजीशन से इसको ओपन करूँगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे कि जो इपॉक्साइड जो है आपका वो ओपन हुआ किस साइड से, 95% इसकी जो है वो यील्ड है, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको लेस हिंडर्ड साइड से आपको ओपन करना है। ऑलवेज वी हैव टू ओपन फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो अब लेस हिंडर्ड साइड कैसे आइडेंटिफाई किया तुमने, ये मिथाइल इधर से लगा हुआ है, बराबर है, और इस कारण पे कोई नहीं लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अटैक करेंगे। बट मिथिल की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट आपको जाना पड़ेगा। मिथिल की कैसे पोजीशन है, मिथिल फ्रंट साइड में, तो आपको सॉरी मिथिल कहाँ पे, बैक साइड में, वेरी सॉरी बैक साइड में दिया, तो आपको आना पड़ेगा फ्रंट साइड से। इसलिए देखो ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, फ्रंट साइड। अब जब ओपन होगा तो ऑलरेडी आपका OH अबव द प्लेन है, तो वो भी आपका अबव द प्लेन ही रहेगा, ओके, रिमेंबर दिस रिएक्शन। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सब्स्टिट्यूशन भी करता है क्योंकि ये वेरी इंटरेस्टिंग रिएजेंट है आपका ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में। और दूसरी बात, अगर आपके पास RX है और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं R2CuLi। अपने 12th में एक रिएक्शंस का नाम है कोरी हाउजर। व्हाट इज दैट नेम, इज कॉल्ड द कोरी हाउजर। देखो SN2 रिएक्शन आपकी होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है, सो ये है मेरा रिएजेंट, दिस इज R और ये मैं X निकालना है मुझे। तो जहाँ पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट इज यू गेट द इन्वर्जन इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए SN2 व्हाट। विल सी द सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दैट। सो देखो दो तरह का एग्जांपल इसका दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे अटैक करूँगा तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए SN2 फैशन, ठीक है। मैकेनिज्म भी देखना है, देख सकते हैं। सेम वे देखो आपके पास अगर ऑर्डर देखो आपको बार बार ऑर्डर सामने लाओ, याद करो उसको, ऑर्डर को, आपको समझ में आएगा। कीटोन भी दिया हुआ है और हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, तो सिलेक्टिव आपका क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, उसके जगह पे जो भी रिएजेंट हमने लिया है वो आपका आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, नाउ विनिल हालाइड्स के साथ क्या होती रिएक्शंस, कपलिंग ऑफ व्हाट, अल्किनाइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड विद ऑर्गेनोक्यूप्रेट प्रोसीड विद हाई सेलेक्टिविटी। सो देखो बाकी मतलब डबल बॉन्ड पे भी रिएक्ट कर रहा है, सो दैट आयोडीन इज सिलेक्टिवली रिप्लेस विदाउट चेंजिंग स्टीरियोकेमिस्ट, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। और इसको बोलते हैं हम अल्किनाइल हालाइड। अल्किनाइल हालाइड मतलब क्या होता है, डायरेक्टली अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो देखो कितनी ज़बरदस्त सेलेक्टिविटी है, विदाउट अफेक्टिंग टू द सेंटर, कहीं पे कुछ आपका स्टीरियोकेमिस्ट नहीं बदला है, बराबर है। चलिए, अब ये हम कंपेयर अगर करते हैं मैग्नीशियम के साथ में या एक्सेट्रा। So iron catalyzed alkylination of an organomagnesium compound provides highly stereo and chemostability of the substituted alkene. Now again same, पहले तो मैंने आयरन का रिएजेंट लिया और उसके साथ में Br को निकाल दिया विद हाई सेलेक्टिविटी। ये कुछ एप्लीकेशन में भी आप इसमें डाल सकते हो। असाइलेशन करना मतलब क्या होता है, सपोज आई हैव दिस RCOX नाउ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वो X की जगह आप R लगा दूंगा। वो R कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका ऐसा कर सकते हैं, लुक एट दिस वन नाउ। तो मैंने क्या किया, E2CuLi। अब क्वेश्चन आपको फिर से अराइज होना चाहिए कि ये कॉन्जुगेट एडिशन क्यों नहीं कर रहा है, ये तो कॉन्जुगेट एडिशन के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन था आपका, ये वाला, तो पहले आपका ये होगा, Cl निकल जाएगा और उसके जगह पे इतना आपका नया आ गया, ठीक है। तो देखो विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। तो अगर सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए कोई बता सकता है क्या मुझे कि मुझे अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर सच में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको लगाव है, तो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन बताइए कि कैन आई रिड्यूस दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कैन आई कन्वर्ट दिस टू दिस वन, या मुझे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है, हाउ दिस इज पॉसिबल नाउ, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू,
एक आपको क्या करना है, कॉन्जुगेटेड टू आइसोलेटेड बनाना है, और बी में क्या करना है आपको, जो आइसोलेटेड है उसका कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है। जो जिन लोगों को लगाव रहेगा सच में वो लोग मुझे आंसर बताएंगे, ग्रुप पे भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, वैसे भी आपकी एक्टिविटी कुछ दिखती नहीं है तो थोड़ा सा वो लगेगा लोगों को कि चलो पढ़ रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। बाकी तो कुछ शुरू नहीं है, तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ओके, सो अनदर इंटरेस्टिंग रिएक्शंस लाइक दिस वन नाउ, अगेन सेम, आप उसमें मेटल भी चेंज कर सकते हैं कॉपर के साथ। अब ये देखो, ये जो हमने लिया था एन ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलॉन्ग विद द कॉपर, तो वो आपका कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है। यहाँ पे एस्टर है आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, तो स्टिल व्हाट, एस्टर इज इंटैक्ट, एस्टर इज इंटैक्ट नाउ, बट आपका क्या हुआ है, एसिड क्लोराइड बिकम्स कन्वर्ट्स व्हाट, द एसिड acyl group, and that is actually the reaction will be called as what, acylation reaction, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ, अब ये तो बताया मैंने आपको कि ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड कैसे होता है, SN2 फैशन में होता है आपका, कि आप उसको SN2 तरीके से बना सकते हैं। OH और ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो था आपका वो दोनों अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। देन ये भी हमने देखा था अभी 1,4 एडिशन किसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन दैट सॉफ्ट एंड हार्ड कंसेप्ट। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो देखो, ये 1,4 एडिशन के लिए प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ये मिलेगा, और इसको जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन कर देना और इसका कीटोनल टॉटोमेरिज्म कर देना। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड कीटोन। और ये जो है आपका, इसको जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, दिस इज मिथाइल ग्रुप के, दिस इज अलाइल अल्कोहल। तो ये किससे हुआ आपका 1,2 एडिशन, ये किससे हुआ 1,4 से। सो वापस से वही केमिस्ट्री आपकी कि 1,4 पे क्यों होता है, 1,2 पे क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरेक्शन कैसा है आपका, हार्ड एंड हार्ड, बहुत हार्ड बोलते हैं ना उसको, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, वो उसी तरह से आपका, और ये बहुत सॉफ्ट, ऐसा भी इसको पढ़ सकते हो, ओके। हियर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स विद द और रिएक्ट्स विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विद द हार्ड न्यूक्लियोफाइल। and if we want to compare that organolithium, organomagnesium and what organocopper with respect to इनोन, इनोन किसको बोलते हैं, इन प्लस ओन, यानी कि आपके पास डबल बॉन्ड भी है और आपके पास ये भी, इसको बोलते हैं इनोन। अब मैं बताऊंगा आपको कि देखो कैसे इंटरेस्टिंग है तीनों एग्जाम्पल, लुक एट दिस वन। अगर अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, कौन सा है, लिथियम, लिथियम हमेशा ही 1,2 एडिशन करता है, ऑलवेज। ऑर्गेनोलिथियम ओनली डू द 1,2 एडिशन, ठीक है, यानी कि हम इधर डाल सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम को। ऑर्गेनोमैग्नीशियम ऑल्सो डू द 1,2 एडिशन ऑलवेज, ठीक है, ये तो दो हो गए आपके। बट अगर ऑर्गेनोमैग्नीशियम के साथ थोड़ा सा कॉपर डाल दो तो ये दिखाएगा 1,4 एडिशन, और ऑर्गेनो कॉपर के लिए तो 1,2 पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज इट शो द वर्ड 1,4 एडिशन। सो आई होप ये आपको टेबल समझ में आ रहा होगा कि मेरा क्या बोलना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसमें। ये बहुत बड़ा रिएजेंट है और इंटरेस्टिंग भी है आपका। यहाँ पे देखो क्या हुआ है आपका, ऑर्गेनो ये वाले की अगर आप बात करेंगे तो आपका ये वाला मिथिल लगा हुआ है, तो इसलिए ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एडिशन। मैकेनिज्म देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला इसका रहेगा मैकेनिज्म। पहले आपका कॉपर ऐसे बाइंड होता है डबल बॉन्ड के साथ में, और देन फिर आपका ये एलिमिनेशन होने के बाद ये आपको प्रोडक्ट मिलता है इसका, ठीक है। सो सैचुरेटेड कीटोन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कुछ में एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए, ये वाला तो आपको ये आएगा करते, क्या रहेगा इसमें, एन ब्यूटिल ये दिया हुआ है आपका NBu2 टाइम्स, यानी कि एन ब्यूटाइल का आपका कॉपर रिएजेंट है, और यहाँ पे CH3 क्या होगा, सिंपली आपका 1,4 एडिशन होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा आपका, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको, वी विल सी द मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि फाइनल में आपके पास, अगर ये वीडियो को लेक्चर को अगर आपने स्किप नहीं किया है तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, ये वाला इसका सॉल्यूशन है। हाँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो O नेगेटिव बनेगा ना आपका, उसके साथ क्या कौन लगा दो, SiMe3, ठीक है।
चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं और दूंगा आपको यहाँ पे। ये आपको करना है सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है। तो इसको लिख के ले लो और इसको सॉल्व करो। एंड दिस वन आल्सो वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। हाँ, आपने एक सेलेन ऑक्साइड एलिमिनेशन का नाम सुना होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सेलेन ऑक्साइड एलिमिनेशन वी आर कन्वर्टिंग ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको अपन कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर। यहाँ पे देखो आपने एल डाला, पहले तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, फिर उसके बाद इसने SCPH लगा दिया, मतलब यहाँ पे लग गया आपका SCPH, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनो सेलेनियम कंपाउंड। और फिर हमने इस पर पर एसिड डाला, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, और फिर हमने इसमें बेस डाल के एलिमिनेशन कर दिया इसका। तो आपको ये H देखो कैसे निकलता है। सो दिस विल बी अब्स्ट्रैक्ट हियर, दिस विल बी मूव हियर एंड हियर विल बी फ्री। तो आपको डबल बॉन्ड मिला। मैकेनिज्म अगर देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाउ आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स टू कॉन्जुगेटेड वन। तो पहले LDA डालेगा तो प्रोटॉन निकालेगा। LDA कहाँ से निकालता है प्रोटॉन, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, तो वो लेस क्राउडेड साइड से निकालेगा प्रोटॉन। और फिर हमने सेलेनेशन किया इसका, तो ये लग गया आपका ऑर्गेनो सेलेनियम। फिर मैंने ऑक्सीडेशन किया उसका, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका सेलेन ऑक्साइड बन गया, और ये सिन एलिमिनेशन में जाता है और आपको प्रोडक्ट मिलेगा कॉन्जुगेटेड इनोन, ठीक है। चलिए, सो ये आपको आना चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर द इनोन फ्रॉम फॉर द या फिर इनोन हमको बनाना है कॉन्जुगेट एडिशन के लिए, ठीक है। सो कुछ रिएक्शंस मैंने दिए फ्रॉम कीटोन्स वाया ब्रोमिनेशन और डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। तो पहली रिएक्शन ये वाली रहेगी, जिससे हम सबसे पहले ब्रोमिनेशन करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, नॉट इन बेस रिमेंबर, और फिर हमने इसको एलिमिनेशन कर दिया, तो ये आपका बना एक, ये हो गया। अब फिर आप यहाँ से आपका ग्रीन कौन आएगा, आपका ऑर्गेनो कॉपर R2CE वाला है, ठीक है। तो आगे आपको उसका लेना है। देन उसके बाद ये भी है आपके पास एक सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम इसको बोलते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड डिहाइड्रो आयोडीनेशन। पहले आयोडीन लगाना है आपको, बट आयोडीन लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो पहले ये लेना है तुमको, ठीक है, NiS। देन व्हाट NiS मतलब क्या होता है, एनाइडोसक्सिनामाइड है वो। फिर उसका हमने कन्वर्ट किया उसको, और ये लगने के बाद हमने इसको एलिमिनेशन किया। फिर से हमारा रिएजेंट आएगा और कॉन्जुगेट एडिशन करके चला जाएगा, ठीक है। देन वी हैव थर्ड रिएक्शन फ्रॉम व्हाट द आइडोबेंजोइक एसिड। ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो IBX ले लो, उसके साथ आप डायरेक्टली जो है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और IBX का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा भी कुछ डिफ़िकल्टी कहीं लगती है तो आप मुझे बता सकते हो। और बेसिकली मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये क्या 8-10 लोग लेक्चर देखते रहते हैं, आपको मज़ा नहीं आता है क्या लेक्चर देखने में, या कुछ आपका पर्सनल इश्यू होगा तो वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। जो लेक्चर चल रहे हैं तुम्हारे, एटलीस्ट अगर उसको देखेंगे नहीं, टाइम पर नहीं देखेंगे, तो फिर क्या मतलब की बात है। इसीलिए नहीं तो आपका ये वीक में जो है, मैं हर एक लेक्चर लेना चाहता हूँ, रोज़ पर डे पर लेक्चर। एक मतलब क्या होता है वो, हर दिन एक लेक्चर। बट एज़ पर द रिस्पॉन्सेस आर ऑब्टेन, सो तो थोड़ा सा वो लेजीनेस है ना, लेथार्ज आ जाता है आपका देखकर। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हफ्ते में एक ही लेक्चर पड़ेगा आपका। देखो आपको क्या बोलना है, तो ठीक है, तो आपको एक ही लेक्चर पढ़ना पड़ेगा फिर, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो इतना ही। और ये सब बनाने के लिए टाइम लगता है। होप जाने दो आपको क्या, आपके साथ क्या डिस्कस करके क्या मतलब है। आप सिर्फ सिलेबस का पढ़िए, बाकी चीज़ों को फॉरगेट कीजिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, लेक्चर थोड़ा देखा कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।